Good morning. Welcome back to another class of body fluids and circulation. So, continuing the last class, we completed a topic called as cardiac output and blood pressure, right? So, in detail, we spoke about types of blood pressure and we also spoke about cardiac output. We spoke about the formula for finding out the cardiac output, right? So now if you remember the formula for cardiac output, it is equal to cardiac output is equal to stroke volume into heart rate, right? So in this particular class we will be talking about laws pertaining to we'll be talking about the laws pertaining to the determinants of cardiac output, laws pertaining to the determinants of cardiac output, right? So the first determinant formula का first part क्या है? Stroke volume. So the law pertaining to the stroke volume is called as Starling's law. बहुत ही सिंपल सा लॉ है बेटा, कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ लॉ का स्टेटमेंट याद रखना है, कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है. Starling's law was stated by बहुत ही सिंपल बेसिक लॉ है. It was stated by Frank Starling. Right? So Frank Starling says the law states that stroke volume is directly proportional to the venous blood return. Stroke volume is directly proportional to the venous blood return to the heart. ओके, कॉमन सेंस है बेटा. स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है अपना? स्ट्रोक वॉल्यूम है 70 ml, है ना? तो अगर आपका वीनस ब्लड रिटर्न मतलब जो एसवीसी आईवीसी से जो ब्लड आ रहा है ना, बिकॉज ऑफ सम लेट्स से फॉर एग्जांपल बिकॉज ऑफ सम डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो या बिकॉज ऑफ सम अदर मेटाबॉलिक डिजीजेस हो, है ना, बिकॉज ऑफ लो ब्लड प्रेशर हो, तो अगर आपका जो वीनस ब्लड रिटर्न इन वन पर्टिकुलर सेकेंड और इन 0.8 सेकेंड, ओके, वीनस ब्लड रिटर्न अगर कम है, हार्ट में आने वाला ब्लड ही कम आ रहा है, ठीक है, प्रीडोमिनेंटली, सो द स्ट्रोक वॉल्यूम विल बी अफेक्टेड. इज दैट राइट? सो इसीलिए टू मेंटेन अ प्रॉपर स्ट्रोक वॉल्यूम इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ प्रॉपर ब्लड प्रेशर. अगर स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ गया मतलब अगर वीनस अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है बेटा, इमेजिन करो ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो क्या होगा कि आर्टरीज में आर्टरी से फटाफट ब्लड मूव होते जा रहा है इनटू द टिश्यूज, राइट, एंड द सेम ब्लड will enter into the tissue and it will be carried out into the veins. and अगर blood pressure बहुत ज़्यादा है तो venous blood return will be more comparatively. here we are talking about with respect to time, ठीक है. वीनस ब्लड रिटर्न कंपेरेटिवली ज़्यादा होगा, 70 ml भरने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. तो 0.8 सेकेंड में लेट्स से फॉर एग्जांपल 80 ml भरा है या 900 ml बना है, तो ऑटोमेटिकली स्ट्रोक वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड. अगर आपका ब्लड प्रेशर लो है ना, लो है तो ब्लड बहुत स्लोली आ रहा है, तो 0.8 सेकेंड में 70 ml नहीं आएगा, 50 ml आएगा. सो ऑन दैट पर्टिकुलर लेवल योर कार्डियक आउटपुट विल बी अफेक्टेड, योर स्ट्रोक वॉल्यूम विल बिकम 50, राइट. सो आई टोल्ड यू दैट वीनस ब्लड रिटर्न जो है, वीनस ब्लड रिटर्न रेफर्स टू द ब्लड रिटर्निंग फ्रॉम द सिस्टमिक सर्कुलेशन इनटू द heart is referred to as venous blood circulation or venous blood return. So in other words ये आपको याद रखना है कि most of the time the stroke volume is 70 ml per minute. Is that right? So during the physical exercise ये भी हमने बात किया था कि during the physical exercise the cardiac output increases. Is that right? It increases and it becomes 21 liters per minute. Is that right? Actual cardiac output क्या है कि actual cardiac output आपका
आपका एक्चुअल कार्डियक आउटपुट इज 5 लीटर पर मिनट, बट व्हेन यू टॉक अबाउट फिजिकल एक्सरसाइज इट बिकम्स 21 liters per minute. Is that right? So that is associated with Starling's law. The other law which is referred to as, ये थोड़ा सा confusing लगेगा आपको, थोड़ा सा समझने में थोड़ा सा आपको it is not really convincing, but we'll try to understand it very well. ठीक है. The next law is associated with Mare's law. Mare's law basically it talks about the relationship between blood pressure and heart rate. What is heart rate? It is number of heartbeats per minute is your heart rate. Is that right? So इन दोनों के बीच में ये रिलेशन बता रहा है ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट, राइट? सो अकॉर्डिंग टू मैरेज लॉ, ब्लड प्रेशर is inversely proportional to heart rate. Blood pressure is inversely proportional to heart rate. बट सर ये तो सुनने में थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है कि सर मैंने तो ऐसे सुना था कि ब्लड प्रेशर अगर इंक्रीज हुआ तो ऑटोमेटिकली हार्ट रेट, बिकॉज ब्लड स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज होगा सर, तो स्ट्रोक वॉल्यूम अगर इंक्रीज होगा तो हार्ट का रेट भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा और कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज होगा. यही होता है फिजिकल एक्सरसाइज के टाइम पे, राइट? बट मतलब जनरली अगर किसी भी इंसान का ब्लड प्रेशर हाई है ना, तो जनरली अगर मैं उसका पल्स चेक करता हूँ तो पल्स भी मेरे को हाई ही दिखेगा. तो ये तो हमने मेडिकल टर्म में इनका रिलेशन तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पढ़ा है सर, बट आप क्यों ऐसे मेरे को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल पढ़ा रहे हो? दैट शुड बी अ क्वेश्चन विच शुड कम फ्रॉम योर एंड, राइट? बट व्हेन यू लुक एट दिस पर्टिकुलर रिलेशनशिप बेटा, ओके, ये रिलेशनशिप इज बेसिकली एसोसिएटेड विद फिजियोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर. मतलब देखो बेटा, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका ब्लड प्रेशर सिर्फ कोई बीमारी के वजह से इंक्रीज़ हो या एक्सट्रीम सॉल्ट इनटेक के वजह से इंक्रीज़ हो. आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मली भी इंक्रीज़ होता है. फॉर एग्जांपल अगर आपने देखा रहेगा कोई लोगों को ऐसा होता है कि खाना खाने के बाद उनको पसीने छूटते हैं, दैट मीन्स ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हुआ है. एवरी टाइम यू टेक बाथ with warm water and you come out of your shower, again the blood pressure of your surface is absolutely increased, right? तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होना डिक्रीज होना ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंट्रोल है, राइट? अगर ये ब्लड प्रेशर रिमेन्स हाई ओनली, देन दैट बिकम्स अ पैथोलॉजिकल कंडीशन. Is that right? Then that turns out to be a hypertension. Hypertension मतलब high blood pressure, ठीक है? बट जनरली हर इंडिविजुअल में, हर नॉर्मल इंडिविजुअल में भी द ब्लड प्रेशर विल बी एब्सोल्युटली इंक्रीजिंग एंड अगेन इट कम्स बैक टू नॉर्मल बेटा, ठीक है? ये होता ही है. लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दौड़ रहा हूँ, जॉगिंग कर रहा हूँ, रनिंग कर रहा हूँ, दैट टाइम ऑल्सो द ब्लड प्रेशर इंक्रीजेज बिकॉज आई एम डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज. कॉमन सेंस यहाँ पे सब एक लिंक के जैसे लग जाती है ना? अगर मैं फिजिकल एक्सरसाइज कर रहा हूँ, है ना, अगर मैं फिजिकल एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो फिजिकल एक्सरसाइज के लिए आई विल हैव मोर डिमांड ऑफ, बिकॉज मेरा मसल्स बहुत कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, एंड आई विल हैव मोर डिमांड ऑफ O2 एंड न्यूट्रिएंट्स, है ना? और ये O2 और न्यूट्रिएंट्स को बहुत ज़्यादा सप्लाई करने के लिए द ब्लड प्रेशर इंक्रीजेस. इज दैट राइट? एंड ऑटोमेटिकली जैसे आपका फिजिकल एक्सरसाइज बंद हो जाता है तो योर ब्लड प्रेशर अगेन विल कम बैक टू नॉर्मल. आपको समझ रहा है ना? तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज और डिक्रीज होना ये बहुत बड़ा ऐसे बहुत प्रॉब्लमेटिक कंडीशन नहीं है बेटा. एवरी वन ऑफ यू एक्सपीरियंसेस दिस. अब जब आप बहुत ज़्यादा डर जाते हो, है ना, इफ़ यू आर एक्सट्रीमली स्केर्ड और इफ़ यू आर एक्सट्रीमली एंग्री, दैट टाइम ऑल्सो योर ब्लड प्रेशर इंक्रीजेस. बट क्या वो इंक्रीज ही रहता है जब तक आपके दिमाग के ब्लड वेसल्स फट नहीं जाते?
ऐसा होता ही नहीं है ना बेटा। ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है फिजियोलॉजिकली एंड वो वापस कंट्रोल में लाया जाता है। इज दैट राइट? सो आई टोल्ड यू दिस इज अ फिजियोलॉजिकल कंट्रोल, बिकॉज अगर ब्लड प्रेशर इंक्रीज ही रहा दैट विल हैव नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑन योर टिश्यू। Is that right? So this law is associated with physiological control in a normal individual. ठीक है। पैथोलॉजिकल कंडीशन में क्या होगा? ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ, हार्ट रेट भी इंक्रीज होगा, फिर हम लोगों को दवाई लेनी पड़ेगी टू डिक्रीज द ब्लड प्रेशर एंड ऑटोमेटिकली हार्ट रेट विल बी डिक्रीज्ड। ओके, दिस इज सीन इन अ नॉर्मल इंडिविजुअल। ठीक है, क्या होता है? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब मान लो कि आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ है ड्यू टू फिजिकल एक्सरसाइज, सब नॉर्मल कंडीशन है। या फिर मान लो आपके पीछे पड़ा है रॉटवाइलर कुत्ता, ठीक है, तो आपका तो ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया एंड यू आर रनिंग आफ्टर दैट, यू आर रनिंग बिफोर दैट, कुत्ता आपके पीछे है, यू आर रनिंग बिफोर दैट, राइट, एंड योर मसल्स आर कॉन्ट्रैक्टिंग टू अ ग्रेटर एक्सटेंट एंड टू सप्लाई और टू एडिक्वेटली प्रोवाइड nutrients and oxygen to your muscles, your blood pressure increases। ठीक है, चलो कुत्ते से आप सक्सेसफुली आप एक पेड़ पे चढ़ गए, है ना। अब आपको पता है कि वो रॉटवाइलर बेचारा पेड़ पे तो नहीं चढ़ सकता, बेचारा नहीं है ना, पेड़ पे तो नहीं चढ़ सकता। क्या आपका ब्लड प्रेशर पेड़ के ऊपर भी हाई रहेगा? ऑटोमेटिकली द ब्लड प्रेशर विल कम डाउन बिकॉज नाउ यू आर एब्सोल्युटली सेफ, you heave a sigh of relief, right? By just making yourself feel comfortable and calm, तो तब आपका ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली कम होगा, राइट? ये कैसे कम होता है? when does your body needs to increase the blood pressure, but automatically blood pressure कम कैसे होता है? by all affecting the heart rate। now let's understand the physiological process कि कैसा होता है। बट इमेजिन कर लो कि आपका ब्लड प्रेशर अभी क्या था, इमेजिन करो कि ब्लड प्रेशर हाई था बेटा बाय एनी पर्टिकुलर फिजियोलॉजिकल या नॉर्मल कंडीशन। खाना खाने के बाद भी ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है बिकॉज खाना खाने के बाद आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के मसल्स बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होना चालू कर जाते हैं बिकॉज देयर नाउ योर डाइजेशन शुड इम्प्रूव, राइट? सो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, दे स्टार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग। स्टमक देखो चर्निंग कर रहा है, तो स्टमक को रिच सब न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई चाहिए, रिच O2 का सप्लाई चाहिए, राइट? इसलिए हम जनरली बोलते हैं कि नहाने के बाद खाना खाने के बाद जनरली नहाते नहीं है। क्यों? बिकॉज व्हेन यू टेक बाथ विद वार्म वाटर यू आर इंक्रीजिंग द ब्लड प्रेशर ऑफ योर सरफेस टिश्यू, सरफेस मसल्स, स्केलेटल मसल्स। बट आपको रिक्वायरमेंट किसकी है? स्मूथ मसल्स को ब्लड प्रेशर ज़्यादा चाहिए थी, ठीक है। तो अगर आप गर्म पानी से नहाते हो तो द ब्लड प्रेशर विल बी ऑल्टर्ड एंड स्केलेटल मसल्स को ज़्यादा ब्लड प्रेशर, स्किन को और ये सब मसल्स को ज़्यादा ब्लड सप्लाई मिलेगा नाउ, एंड बिकॉज ऑफ दिस योर डाइजेशन विल बी लिटिल मोर अफेक्टेड। Okay, these are all basic examples which we have to understand, okay, but again these are all extra points, something which is important from the exam point of view, I am writing it down here, ठीक है। Now what happens is this increased blood pressure, constant increased blood pressure will stimulate the baroreceptors, it stimulates the baroreceptors। और ऐसे स्पेशलाइज्ड बैरो रिसेप्टर्स है जो अपन ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में बात करेंगे, ठीक है। मतलब ब्लड प्रेशर कहाँ पे एक्सर्ट हो रहा है बेटा? इट इज़ बीन एक्सर्टेड ऑन द वॉल्स ऑफ द आर्टरी, राइट? और अगर एक्सेसिव ब्लड प्रेशर हुआ तो आर्टरीज डैमेज हो सकते हैं। सो टू कंट्रोल दैट देर आर स्पेसिफिक बैरो रिसेप्टर्स। दीज बैरो रिसेप्टर्स आर नथिंग बट स्पेशलाइज्ड नर्व सेल्स which carry sensory impulses into the sensory impulses to your brain। आपका कार्डियक सेंटर कहाँ पे है? मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, is that right? So it stimulates the baroreceptor. Where is this baroreceptor? This baroreceptor is present in the endothelium of the blood vessel, endothelium of the blood vessels, ठीक है बेटा।
अब होगा क्या, बैरोरिसेप्टर्स तो स्टिमुलेट हो गए, अब ये बैरोरिसेप्टर्स विल सेंड, बैरोरिसेप्टर्स का काम क्या है, अब वो मेडुला ऑब्लोंगेटा को स्टिमुलेट करेंगे और वहाँ पे वो इनहिबिटरी सिग्नल्स भेजेंगे, बिकॉज मेडुला हैज़ टू सेंड इनहिबिटरी सिग्नल्स टू योर हार्ट, ठीक है. सो दिस स्टिमुलेटेड बैरोरिसेप्टर दे विल सेंड inhibitory signals to the cardiac center, inhibitory signals to the cardiac center in medulla oblongata. Is that right? ठीक है, in medulla oblongata. That is it is the cardiac center. ये आपको याद रखना है from the exam point of view. Okay. Now this medulla oblongata क्या करेगा, अब ये medulla oblongata will send inhibitory signals to the SA node via vagus nerve. Vagus nerve is the 10th cranial nerve. ये याद रखना है, कुछ चीज़ें आपको याद रखना है जो हम लोग बाद में ब्रेन वो ये चैप्टर्स में पढ़ेंगे. वेगस नर्व आपको याद रखना है बेटा, और कार्डियक सेंटर याद करना है. कार्डियक सेंटर तो आप पढ़ोगे कि अभी आपको पता चलेगा नेक्स्ट ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज में कि इट इज़ प्रेजेंट इन दी मेड्यूला, ठीक है. और इनहिबिटरी सिग्नल्स जो है ऐसे, मतलब इनहिबिटरी सिग्नल्स आएंगे फ्रॉम दी वेगस नर्व. वेगस नर्व इज ऑल्सो एक्टिंग लाइक अ पैरासिम्पैथेटिक नर्व. इज दैट राइट? ओके. सो जैसे ही आपका वेगस नर्व से इनहिबिटरी सिग्नल्स कहाँ पे जाएंगे, दी वेगस नर्व से इनहिबिटरी सिग्नल जाएंगे टू दी SA नोड, एंड दिस SA नोड will decrease the impulse generation. In other words, these inhibitory signals will stimulate the SA node, and this SA node will decrease the heart rate. SA node बहुत ज़्यादा, मतलब हार्ट रेट इंक्रीज हुआ, इसका मतलब क्या है, हार्ट रेट इंक्रीज हुआ इसका मतलब आपका SA नोड तुरंत within 1 second it is firing up many impulses, right? So many heartbeat. अगर SA नोड को इनहिबिटरी सिग्नल मिला तो ऑटोमेटिकली इट विल सेंड इट विल डिक्रीज दी हार्ट रेट. समझ में आ रहा है बेटा? इट विल डिक्रीज दी हार्ट रेट. सो ऐसे आपका जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है बहुत ज़्यादा, सो टू प्रिवेंट द डैमेज कॉज्ड बाय इंक्रीज ब्लड प्रेशर टू योर बॉडी, okay, automatically the heart rate is adjusted to get back your blood pressure to normal condition, ठीक है. बट हार्ट रेट बियॉन्ड 72 नहीं जा सकता बेटा, ठीक है. तो जैसे ही वो हार्ट रेट, अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल ब्लड प्रेशर बहुत कम है, ओके, इमेजिन करो कि आपने कुछ सुबह से खाया नहीं है ना, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो रही है आपकी, लोगों को ये भी बीमारी होती है. तो अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, सो ऑटोमेटिकली और हार्ट रेट विल इंक्रीज. हार्ट रेट अगर इंक्रीज होगा तो आपका ब्लड प्रेशर विल ऑटोमेटिकली कम बैक टू नॉर्मल. अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा, ये दोनों का रिलेशन ऐसा ही है, ओके, दीन बंधु दया बंधु के जैसे है. सो ब्लड प्रेशर अगर इंक्रीज हुआ बेटा, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ, तो हार्ट रेट विल डिक्रीज टिल द ब्लड प्रेशर कम्स बैक टू नॉर्मल, ठीक है. अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हुआ तो ऑटोमेटिकली हार्ट रेट विल इंक्रीज टू गेट द ब्लड प्रेशर टू नॉर्मल. व्हाट इज द नॉर्मल ब्लड प्रेशर? इट इज 120/80 mm ऑफ Hg. वेरी क्लियर बेटा, ठीक है. सो ये दो पर्टिकुलर लॉज हमको यहाँ पे देखने थे. इज दैट राइट? ये दो लॉज हमको यहाँ पे समझने हैं बेटा. दैट इज स्टर्लिंग्स लॉ associated with the first determinant factor, stroke volume, and the other one is Marais law, which is the second determinant factor, which shows the relationship between the second determinant factor, that is heart rate and blood pressure. इतना समझा है बेटा? ठीक है. सो ये दो लॉज हमने बात कर लिए. अब वी विल टॉक अबाउट द रेगुलेशन ऑफ, we will have to talk about the regulation of the heart rate.
व्हाट डू यू मीन बाय रेगुलेशन? रेगुलेशन का मतलब क्या है? इंक्रीज करना, जो इंक्रीज हुआ है उसको डिक्रीज करो, जो डिक्रीज हुआ है उसको इंक्रीज करो. सो इन अदर वर्ड्स रेगुलेशन रेफर्स टू ब्रिंगिंग बैक टू नॉर्मल फिजियोलॉजिकल स्टेटस. ठीक है. सो रेगुलेशन ऑफ हार्ट रेट, मेरे को हार्ट रेट ज़रूरत से ज़्यादा भी इंक्रीज नहीं चाहिए, मेरे को हार्ट रेट ज़रूरत से कम भी नहीं चाहिए. तो इसको रेगुलेट करने के लिए व्हाट मैकेनिज्म डू यू हैव? नो हियर द मैकेनिज्म इज एब्सोल्युटली सिंपल. आपको दोनों सेम लगेंगे बट दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है. ठीक है. सो द रेगुलेशन ऑफ द हार्ट रेट इज कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन, जैसे हमने अभी बात किया है ना, बाय द ब्रेन, एंड ऑल्सो इट इज एसोसिएटेड विद द डिफरेंट टाइप ऑफ हॉर्मोन्स. विल टॉक अबाउट दैट एज वेल. ठीक है. सो बाय द ब्रेन बोलने का मतलब ये है, आई टोल्ड यू दैट ब्रेन डज नॉट इनिशिएट द इम्पल्स प्रोडक्शन, इट इज ओनली सेंडिंग अप इम्पल्सेस टू इंक्रीज और डिक्रीज द हार्ट रेट. इंक्रीज करने के लिए आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, डिक्रीज करने के लिए आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है. समझ में आ गया बेटा? सो अब इसके कैटेगरी में वी विल फर्स्ट टॉक अबाउट न्यूरल रेगुलेशन, मतलब रेगुलेशन विद द हेल्प ऑफ योर ब्रेन. न्यूरल रेगुलेशन. ओके. नाउ न्यूरल रेगुलेशन में कुछ तो ऐसा स्टिमुलस चाहिए. सो टेक्निकली आई टोल्ड दैट दिस न्यूरल रेगुलेशन इज कंट्रोल्ड बाय सिंपैथेटिक, इट इज कंट्रोल्ड बाय सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और दूसरा इट इज कंट्रोल्ड बाय पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. सूखिदु में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है? इट इंक्रीजेस द इट इंक्रीजेस द हार्ट रेट, whereas parasympathetic decreases the increased heart rate. Very clear? It does not decrease it beyond 72. I'm making myself very clear. ठीक है. It decreases the increased heart rate. समझे बेटा? तो अभी कुछ तो स्टिमुलस चाहिए यहाँ पे. इज दैट राइट? सो हार्ट रेट को अगर मेरे को इंक्रीज करना है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ. कब हार्ट रेट इंक्रीज होगा बेटा? चलो बताओ. मैंने कंडीशंस आपको बताए. आप फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हो, फिजिकल एक्सरसाइज के टाइम पे व्हाट इज हैपनिंग? योर मसल्स आर वर्किंग टू अ ग्रेटर एक्सटेंट, सो मसल्स आर यूटिलाइजिंग ग्रेटर अमाउंट ऑफ O2. बहुत ज़्यादा O2 खत्म हो रहा है. ठीक है. तो अगर बहुत ज़्यादा O2 यूज़ हो रहा है तो क्या मैं ये भी बोल सकता हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड भी इंक्रीज हो रहा मसल्स में? ठीक है. सो O2 डिप्लीट होना इज नॉट अ वेरी पावरफुल स्टिमुलस, बट कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होना, बिल्डअप होना इन द बॉडी, दैट इज अ वेरी प्रोमिनेंट स्टिमुलस. ये हम लोग ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज में पढ़ेंगे. ठीक है. सो O2 डज नॉट प्ले अ मेजर रोल हियर, कार्बन डाइऑक्साइड प्लेज अ मेजर रोल. Is that right? So the stimulus which is required for increasing the heart rate, that stimulus is, I told you, कब heart rate increase कब होगा? मैंने आपको यही बताया, जब आप physical exercise के दौरान your carbon dioxide levels of your blood is increasing. Is that right? So that stimulus for increasing the heart rate is increased CO2. ठीक है. अब ये इंक्रीज्ड CO2 अगर होगा तो मेरे को घूम फिर कर O2 को इंक्रीज कराना पड़ेगा. अगर O2 कैसे इंक्रीज होगा? जब मेरे मसल्स को ग्रेटर प्रेशर में ब्लड सप्लाई होगा. इज दैट वेरी क्लियर? सो दैट इंक्रीज्ड O2 इज द स्टिम्युलस. नाउ विल ट्राई टू अंडरस्टैंड. अब इंक्रीज्ड O2 किसको स्टिम्युलेट करेगा? दिस इंक्रीज्ड O2 विल स्टिम्युलेट द कार्डियक सेंटर. It will stimulate the cardiac center. इधर लिखता हूँ मैं, stimulate the cardiac center. Now cardiac center से क्या होगा? Cardiac center से SNS will be stimulated. Sympathetic nerves will be stimulated.
sympathetic nerves are stimulated. Is that right? So now this sympathetic nerves क्या करेंगे? At the SA node, these sympathetic nerves will lead. The stimulation leads at the SA node में बता रहा हूँ आपको, जहाँ पे आपका sympathetic nerves end हो रहे हैं और SA node से impulses चालू हो रहे हैं. So sympathetic nerves will lead to increased synthesis of sympathetin, a class of hormone which is stimulated by sympathetic nervous system. Now what are sympathetin here? There are two distinct hormones which have synergistic effect. So sympathetin is your adrenaline and noradrenaline. It is the same hormone responsible for anger. Adrenaline and noradrenaline. यही सेम हार्मोन अपने को आएगा कहाँ पे आएगा? ये सेम हार्मोन अपने को हार्मोनल कंट्रोल में भी आएगा, बट यहाँ पे सोर्स अलग होगा. सो एड्रीनालिन एंड नॉरएड्रेनालिन हियर it acts like a neurotransmitter because it is released by the neurons. Are we understanding it? एड्रीनालिन नॉरएड्रेनालिन आपके न्यूरॉन से भी रिलीज होंगे. एड्रीनालिन नॉरएड्रेनालिन आपके एड्रीनल मेड्यूला से भी रिलीज होंगे बेटा. बट हियर एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट इट इज एक्टिंग लाइक अ neurotransmitter because it is released by a neuron, the terminal ends of the sympathetic nerves. ठीक है बेटा. ऑल राइट. सो एड्रीनालिन नॉरएड्रेनालिन क्या करेगा मसल्स के अंदर? एड्रीनालिन नॉरएड्रेनालिन increases, it induces the entry of Ca+2 ions. Okay, it increases the entry of Ca+2 ions. ठीक है. Now because of this Ca+2 ions are very important to increase the heart rate here. ठीक है. Because of this Ca+2 ions, the SA node is hyperstimulated. Yes, Ca+2 ions का रोल हमने न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में पढ़ा है. तो प्लीज़ गो बैक टू दैट सेक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के सेक्शन पे जाओ, या फिर आपके साइनेप्सिस के सेक्शन में जाओ और एसए नोड नहीं, Ca+2 आयन का फंक्शन हमको देखना है. Ca+2 आयन्स बेसिकली कॉजेज इवन मोर रिलीज ऑफ सिंपैथेटिन. ठीक है. तो एसए नोड इज हाइपर स्टिम्युलेटेड. अगर एसए नोड हाइपर स्टिम्युलेटेड होगा, ठीक है, एसए नोड अगर हाइपर स्टिम्युलेटेड होगा, हियर आई टेल यू दिस Ca+2 आयन्स इज ड्यू टू दी क्या बोलते हैं उसको, ड्यू एट द पॉइंट ऑफ द साइनेप्स. ठीक है. अगर एसए नोड हाइपर स्टिम्युलेट होगा, मोर इम्पल्स विल बी जनरेटेड, more impulse generation will lead to more release of Ca+2 in the cardiac muscles. ओके. अब ये सब अपन मसल्स में पढ़ने वाले हैं. ठीक है. कार्डियक मसल्स के जो Ca+2 है उसका मसल्स के अंदर Ca+2 इंक्रीज होगा. ये जो है दैट इज इन दी न्यूरॉन्स, मतलब टेक्निकली एक्सोनल एंड. ये Ca+2 दो जगह पे प्ले कर रहा है रोल. ठीक है. दिस इज इन दी न्यूरॉन एंड दिस इज इन दी कार्डियक मसल. ठीक है. सो more release of Ca+2 ions, so that will cause more contraction per minute, more number of contraction
more number of contraction per minute. That leads to something called as tachycardia. That leads to something called as tachycardia. Tachycardia का मतलब क्या है? फास्ट हार्ट बीट या इंक्रीज्ड हार्ट रेट या फास्ट हार्ट बीट. ठीक है, टैकीकार्डिया इज इंक्रीज्ड हार्ट रेट. इसको याद कैसे करोगे? एक क्लू यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं आपको. इसको याद करने के लिए आप याद करोगे, एक घड़ी का ब्रांड है जिसको हम बोलते हैं फास्ट ट्रैक. ठीक है, तो इट इज़ फास्ट टैक. बिकॉज ये दो वर्ड्स में बच्चे कंफ्यूज होते हैं बेटा. ठीक है, फास्ट टैक है ना, जैसे रीबॉक का रीबूक, ऐसे हम प्यूमा का पोमा, ऐसे अलग अलग चीज़ें बनती है ना. एडिडास का कुछ भी बन जाता है ना. तो वैसे ही फास्ट ट्रैक का हमने कोड बना दिया फास्ट टैक. ठीक है, तो इंक्रीज हार्ट रेट, फास्ट हार्ट बीट इज टैकी, दिस इज स्लो हार्ट रेट इज ब्रैडी. ओके, ब्रैडीकार्डिया. तो ऑटोमेटिकली एक याद कर लिया आपने तो दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाता है. समझी गए हो बेटा? ठीक है. सो व्हाट विल हैपन इन अदर वर्ड्स, इट विल कॉज टैकीकार्डिया. इज दैट राइट? सो टैकीकार्डिया ये आपको याद रखना है कि हार्ट रेट इंक्रीज हो गया. ठीक है, तो हार्ट रेट इंक्रीज होने के बाद अगेन इट हैज़ टू कम बैक टू नॉर्मल. इज दैट राइट? सो जैसे ही हार्ट रेट को अभी नॉर्मलाइज करना है तो एट दैट पर्टिकुलर जंक्शन देयर विल बी रिलीज ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड एज सिंपैथेटिनेस. वो आप खुद से पढ़ लोगे तो भी चल जाएगा, हो जाएगा बेटा. बट आपका यहाँ पे मेजर रोल क्या था? दैट डिक्रीज्ड न्यूरल रेगुलेशन. यहाँ पे हम ये लिखते हैं फॉर इंक्रीजिंग हार्ट रेट. हार्ट रेट को इंक्रीज करने के लिए स्टिमुलस क्या था? इंक्रीज्ड CO2. ठीक है, इंक्रीज CO2 स्टिमुलेट्स द कार्डियक सेंटर. कार्डियक सेंटर स्टिमुलेट होगा तो सिंपैथेटिक नर्व स्टिमुलेट होंगे एंड देयर विल बी इंक्रीज्ड सिंथेसिस ऑफ सिंपैथेटिन, which is nothing but adrenaline and noradrenaline, which acts like a neurotransmitters between the synapse. उसके बाद क्या होगा बेटा? induces entry of the calcium plus 2 ion in the neuron. SA नोड और ज़्यादा स्टिमुलेट होगा और SA नोड अगर और ज़्यादा स्टिमुलेट होगा तो more impulse generation per minute. Is that right? So that leads to tachycardia ultimately. Is that right? Okay. So now next is the next condition is to decrease the heart rate. जो हार्ट रेट इंक्रीज हुआ है उसको डिक्रीज करना है. ठीक है, तो इसके लिए क्या स्टिमुलस होगा बापा? इसके लिए क्या स्टिमुलस होगा? द स्टिमुलस विल बी डिक्रीज्ड CO2. बेटा डिक्रीज्ड CO2 का मतलब क्या है? लिंक क्या होगा कि मसल ज़्यादा काम नहीं कर रहे हैं, O2 ज़्यादा यूटिलाइज ही नहीं हो रहा है. जैसे फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू आर स्लीपिंग, right? When you're sleeping, you're not utilizing much of the oxygen. Only your brain is utilizing oxygen, whereas आपके muscles इतना ज़्यादा ऑक्सीजन यूज़ ही नहीं कर पा रहे, right? तो जब भी आप सोते हो तो आपका हार्ट रेट कम होता है, बट जब भी आप दौड़ते हो तो आपका हार्ट रेट इंक्रीज होता है. Is that right? So for decreasing the heart rate, what is the stimulus? For decreasing the heart rate, the stimulus is decreased levels of CO2. Is that right? So this decreased level of CO2 again it stimulates the cardiac center. It stimulates the cardiac center, and this cardiac center it stimulates the vagus nerve. कुछ भी बोल रहा हूँ, वेगस नर्व, वेगस नहीं बोलना, ठीक है? बिहार से नहीं हो. वेगस नर्व, इट स्टिमुलेट्स द वेगस नर्व, दैट इज द 10th क्रेनियल नर्व. अब ये वेगस नर्व ही बेटा अपना पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वाला नर्व है, क्योंकि ऐसे बॉडी में स्पेशलाइज्ड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम नहीं है. वी विल हैव टू do a chapter called as neural control and coordination, wherein you will understand this in much detail. Okay, it stimulates the vagus nerve, and vagus nerve क्या करेगा? Vagus nerve releases a hormone called as या फिर neurotransmitter called as
acetylcholine. Vagus nerve releases acetylcholine. Now this acetylcholine is a stimulatory neurotransmitter everywhere in your muscles, but only case in the heart it is a inhibitory neurotransmitter, क्योंकि ये हार्ट रेट को डिक्रीज करता है बेटा. एवरीवेयर आई टोल्ड यू, प्लीज मेक श्योर दैट यू कीप दिस, फिक्स इट इन योर हेड. नींद से भी उठाकर पूछा कि वेयर इज एसिटाइलकोलिन एक्टिंग एज अ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, इट इज ओनली इन दी हार्ट. ओके, तो एसिटाइलकोलिन क्या करेगा, रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलिन. ठीक है, हियर एसिटाइलकोलिन इज एक्टिंग लाइक अ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर. कहाँ पे, ओनली इन दी हार्ट. रेस्ट एवरीवेयर इट इज एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर. ठीक है, सो जैसे ही एसिटाइलकोलिन रिलीज होगा, सो द ड्यूरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन इज duration of the duration of contraction is increased. वहाँ पे फटाफट contraction हो रहा था, अब यहाँ पे एसिटाइलकोलिन की वजह से क्या हो रहा है, the duration of the contraction increases. अगर कॉन्ट्रैक्शन का ड्यूरेशन इंक्रीज हो रहा है मतलब स्लो कॉन्ट्रैक्शन होगा, ज़्यादा टाइम के लिए कॉन्ट्रैक्शन होगा. अगर ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होगा दैट विल लीड टू ब्रैडीकार्डिया. टैकीकार्डिया इज फास्ट, ब्रैडीकार्डिया का मतलब क्या है, डिक्रीज्ड हार्ट रेट. समझे बेटा. सो डिक्रीजिंग दी हार्ट रेट ऐसे होता है, इंक्रीजिंग दी हार्ट रेट ऐसे होता है. समझे बेटा. ठीक है, सो दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द न्यूरल रेगुलेशन ऑफ हार्ट रेट. अब बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू hormonal regulation. Now here the hormones are also very similar. Let's say for example, there are also several other hormones which are increasing the heart rate. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हार्ट रेट ड्यूरिंग लव, ड्यूरिंग सेक्शुअल इंटरकोर्स, ड्यूरिंग फिजिकल एक्सरसाइज को छोड़कर बाकी केसेस में भी हार्ट रेट इंक्रीज होता है, बट दैट इज प्योरली बेस्ड ऑन द हार्मोन. ड्यूरिंग एंगर ऑल्सो योर हार्ट रेट इंक्रीजेस. तो एंगर के टाइम पे आपको कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज नहीं हुआ ना बेटा, आपने फिजिकल एक्सरसाइज के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड प्लेज अ मेजर रोल. अचानक से आपको गुस्सा आ रहा है, इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का कोई रोल यहाँ पे नहीं है ना. ड्यूरिंग लव ऑल्सो देर इज नो रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. सो यहाँ पे हार्मोनल रोल प्लेज अ मेजर इंपॉर्टेंट कंडीशन. ओके, so here what are the hormones associated, same hormone है, that is adrenaline, noradrenaline. दुनिया जानती है कि यही दो hormones है जो गुस्से को भी अंजाम देते हैं, right? So when they are secreted by the adrenal medulla, they are referred to as the hormone. The same physiological component, if it is secreted by the neurons, it is referred to as the neurotransmitter. समझे. ठीक है. So the next type of regulation which we have to understand, second wala, is hormonal regulation. Okay, अब hormonal regulation क्या हो रहा है, please understand this. So there are several hormones. सबसे पहला हार्मोन जो है that is adrenaline and noradrenaline. Adrenaline, noradrenaline. Now these two hormones are secreted, they are secreted by adrenal gland, that is adrenal medulla. ये भी स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, दे आर सिक्रेटेड बाय द एड्रिनल मेड्यूला. सो दिस एड्रेनालिन नॉरएड्रेनालिन क्या करेगा, इट विल इंक्रीज द हार्ट रेट. बस इतना याद रखना है आपको, इट विल इंक्रीज द हार्ट रेट. तो यही है, गुस्से के टाइम पे आपका हार्ट रेट इसी की वजह से इंक्रीज हो रहा है. ठीक है. सिमिलरली देयर इज वन मोर हार्मोन दैट इज थायरॉक्सिन, जो थायराइड का हार्मोन है. थायरॉक्सिन
thyroxine causes increase in the heart rate because थायरॉक्सिन का मेजर फंक्शन क्या है? बिकॉज इट इंक्रीजेस BMR. BMR refers to basal metabolic rate. Now what is basal metabolic rate? basal का मतलब है बेसिक, सबसे बेसिक है ना. मतलब आप अगर किसी जॉब पे जाओगे तो आपको एक बेसिक सैलरी तो चाहिए ना, फ्री में तो काम नहीं करने वाले हो, है ना. मतलब आप बोलोगे कि अरे तुम मेरे को सैलरी मत दो, बट एटलीस्ट मेरा पेट पालने के लिए कुछ तो पैसे दे दो. तो दैट इज़ बेसिक, राइट. मेटाबॉलिक रेट का मतलब क्या है? व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? दी टोटल सम ऑफ टोटल केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन अ बॉडी. ठीक है. बेसल मेटाबॉलिक रेट मतलब अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, स्टिल योर बॉडी इज अंडरगोइंग मेटाबॉलिज्म, एंड दैट बेसिक अमाउंट ऑफ मेटाबॉलिज्म अगर कम हो गया तो इंसान मर जाएगा. ठीक है. इंसान के ऑर्गन फेलियर्स चालू हो जाएंगे. सो इवन इफ यू आर डूइंग नथिंग आइडियली, इवन इफ यू आर इन द कोमाटोज स्टेट, अगर आप सिंपली कोमा में भी हो तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, कोमा में इंसान भगाभग खाता नहीं है ना. कोमा में एक ही चीज़ चलती है, दैट इज़ द हार्ट. And the person is put on the ventilator and we are making his heart is absolutely functioning, right. But ऐसा हो सकता है कि उसकी वॉलंटरी ब्रीदिंग बंद हो जाएगी, राइट. सो वेंटिलेटर पे हम एयर को पुश करते हैं सो दैट एटलीस्ट दी ऑक्सीजन का जो डिमांड है दैट इज एब्सोल्युटली मेट इन द एंटायर बॉडी, करेक्ट. फूड की तो इंसान को रिक्वायरमेंट नहीं होती है बेटा, बिकॉज फूड हमारे पास ऑलरेडी इतना सारा स्टोर्ड है, फैट है हमारे पास ग्लूकोज है लिवर के अंदर ग्लाइकोजन के फॉर्म में. सो एवरीथिंग कैन बी, यही चीज़ यूटिलाइज होता है कोमा में. ठीक है. इसलिए जब कोमा से जब लोग बाहर आते हैं तो एकदम कांडी बन के आते हैं, बिकॉज दे डोंट ईट एनी सॉलिड फूड, करेक्ट. बट देयर बॉडी इज स्टिल यूटिलाइजिंग एनर्जी, बिकॉज हार्ट के पंपिंग के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है. बेसिक एनर्जी से हार्ट काम कर सकता है, हार्ट चालू फंक्शनल रह सकता है. इज दैट राइट? सो थाइरोक्सिन इज एसोसिएटेड विद इंक्रीजिंग द BMR, राइट. अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल आपके बॉडी में 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP बन रहे हैं एंड दैट इज द बेसिक मेटाबॉलिक रेट. ठीक है. तो थायरॉक्सिन उस 10 को 100 करेगा, 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP पर डे. लेट्स से फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, एग्जांपल. ठीक है. तो अगर आप 100 प्रोड्यूस कर रहे हो तो आप 100 में से 70 यूज़ करोगे, तब जाके और 70 बनेंगे. इज दैट वेरी क्लियर? सो इफ देर इज मोर एनर्जी, है ना, अगर आप एनर्जेटिक रहे, आपके बॉडी में एनर्जी का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, सो यू विल डू मोर वर्क टू डिसिपेट, टू यूटिलाइज दैट एनर्जी, है ना. अगर आपके बॉडी में एनर्जी बन ही नहीं रही है तो आपका पूरा दिन एकदम थका सा जाएगा. इज दैट राइट? यू विल बी टायर्ड, यू विल नॉट बी एबल टू डू एनी टाइप ऑफ मेंटल वर्क या फिजिकल वर्क. इज दैट राइट? सो थायरॉक्सिन इज एसोसिएटेड टू इंक्रीज द BMR, राइट. मतलब ये 10 ATP से 100 ATP बनाएगा या 1000 ATP बनाएगा. अगर इतना ज़्यादा ATP बना रहा है, लिवर बना रहा है ATP, मसल्स बना रहा है ATP, है ना, तो अगर ब्रेन भी ATP यूटिलाइज कर रहा है, सो अगर इतना ज़्यादा, एवरी पर्टिकुलर सेल इज अंडरगोइंग क्या बोलते हैं उसको, ग्लाइकोलिसिस. ठीक है. So if it is increasing the glycolysis, if it is increasing the ATP production, it has to increase the heart rate for that particular matter, right. So everything is working in harmony, coordinatively. Is that very clear? Okay. So basic metabolic rate, is that very clear? So this basal metabolic rate is then associated to increased production of एनर्जी. समझ गए हो, है ना. तो ये 2 हॉर्मोन्स के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हम लोगों को पढ़ना है. इज दैट राइट? अपार्ट फ्रॉम दिस देर इज़, आई टोल्ड यू, देर इज़ अ कंडीशन वेयर ऑटोमेटिकली दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है. ये तो है ना हिंदी मूवी के घिसे पिटे डायलॉग्स है, जहाँ पे हम बोलते हैं कि उस लड़की को देखा और मेरी दिल की धड़कनें तेज़ हो गई. सो व्हाट डू यू मीन बाय दिस दिल की धड़कनें तेज़ होना, एंड ऑटोमेटिकली इट कम्स बैक टू नॉर्मल. सो दैट इन मेडिकल टर्म, प्रोफेशनली, सोफिस्टिकेटेडली वी कॉल इट एज हार्ट पाउंडिंग, धक धक,
एकदम दिल की धड़कन तेज होना इज हार्ट पाउंडिंग. सो व्हाट इज हार्ट पाउंडिंग? इट इज नॉर्मली इंक्रीज्ड हार्ट रेट. इट इज नॉर्मली इंक्रीज्ड हार्ट रेट during anger, love and sex. ठीक है. So increased heart rate during anger, love and sex is referred to as heart pounding. Is that very clear? So sophisticatedly these are the terms which are associated with heart rate. Is that very clear? एक और छोटा सा एक्स्ट्रा एम्स का कॉन्सेप्ट है. अब देखो, मैं जनरली इसको नहीं पढ़ाना चाहिए आपको, बट एक्स्ट्रा पढ़ोगे तो कुछ वेस्ट नहीं जाएगा बेटा, है ना. एक ही लाइन का तो कॉन्सेप्ट है. समथिंग कॉल्ड एज वेगस एस्केप. अब वेगस एस्केप क्या है, नाम बता रहा है. जो वेगस नर्व है, व्हाट इज वेगस नर्व डूइंग? इट इज डिक्रीजिंग द हार्ट रेट, right? But due to some condition, if the vagus nerve is overstimulated, I told you vagus nerve एक parasympathetic nervous system का काम है, ठीक है. तो vagus nerve जो stimulation लेके जाएगा, that will cause inhibitory signals, it will get the inhibitory signals and the heart rate which has been increased, that will decrease, right? But due to some condition, if vagus nerve is overstimulated, अगर वेगस नर्व ओवर स्टिमुलेटेड हो गया, देन इट हैज़ नो इफेक्ट ऑन दी एसए नोड. इंसान को मारना थोड़ी अपने को. हार्ट रेट को 72 से नीचे और नहीं लेके जाना है. 50, 60, 40, 30, ये क्या टॉवेल बेचने की बार्गेनिंग हो रही है क्या, है ना. तो बोलने का मतलब ये है बेटा, दैट व्हाट इज वेगस एस्केप? If vagus nerve is overstimulated, ठीक है, it has no effect on the SA node. मतलब the heart rate does not fall beyond 72 most of the times. ठीक है. So vagus escape ये बोलता है that overstimulation of vagus nerve escapes directly. It has no effect. इसका मतलब वो जो impulses है वो escape हो गया, useless, absolutely worthless. Is that right? So बोलने का मतलब क्या है बेटा? ओवर स्टिमुलेशन हैज नो इफेक्ट ऑन द एसए नोड, हेंस देर इज नो डिक्रीज्ड हार्ट रेट बियॉन्ड नॉर्मल. ओके. सो यही आपको याद रखना है विद रिस्पेक्ट टू वेगस एस्केप. सो दिस इज अगेन अ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बट ये जितने भी अपने टॉपिक पढ़े ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इज दैट वेरी क्लियर? सो इन दी नेक्स्ट क्लास आई विल मेक अप अ सेपरेट वीडियो फॉर फैक्टर्स अफेक्टिंग ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट. ओके. एंड देन वी विल टेक अप टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन ऑल्सो. एक वीडियो में वो मैं समअप कर दूंगा. देन वी विल टेक अप अ सेपरेट वीडियो फॉर ECG. ठीक है. आई डोंट वांट टू एक्सटेंड द लेंथ ऑफ द वीडियो बिकॉज यू गाइज डोंट वॉच इट एट अ स्ट्रेच, क्योंकि मैं देख रहा हूँ एटलीस्ट जब मैं लाइव लेक्चर्स ले रहा था तो एटलीस्ट आई वॉज प्रीटी हैप्पी दैट आई कुड सी 45 पीपल. नेटवर्क वॉज वन इशू एंड बिकॉज ऑफ ऑल बिकॉज ऑफ दिस नेटवर्क, ठीक है, तो ऑल बिकॉज ऑफ दिस नेटवर्क ये लाइव क्लासेस का झमेला बंद हुआ है. झमेला नहीं, लाइव क्लासेस का पूरा जो स्केड्यूल है ये बंद हो गया है, ठीक है. बट नाउ आई सी दैट since it has been last Monday which I posted, ठीक है, I only get 30 views, 40 views in a day. That means I know that students are absolutely taking the lectures for granted, video lectures for granted, but I really can't go ahead and make everyone understand what is the impact of a live lecture and what is the impact of the video lecture. That is none of my business, right? But I would really appreciate that if you follow a proper schedule. ठीक है. Live lectures, at least I was making sure that you guys were properly following a schedule, ठीक है. But again, if network is only one particular condition because of which every particular individual has to face the problem. So
it's very upsetting that if you can't really afford a stable network connection from your end, there is absolutely no point in affording the entire school fees या college fees या institute के fees का you know burden. एनी विच वेज कॉम्प्रोमाइज़ कंडीशन में अगर हमको कॉम्प्रोमाइज़ करना है तो प्लीज़ कॉम्प्रोमाइज़ ऑन योर नेटवर्क कनेक्शन. Is that right? I really don't want to make up people who are watching this particular video. I am just making it very clear from my side. Is that very clear? So make sure that you watch it timely. Make sure that you do not download and keep it. Watch it timely so that at least you don't pile up on unnecessary portion. ठीक है. So please be true to yourself. Please be scheduled for your studies. ठीक है. Otherwise you will have to bear the consequences. Everything you will be responsible for your own losses. Is that very clear? Thank you so much for watching. Thank you so much.